بریٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ شہر میں آٹے قلت کا مسئلہ بدستور برقرار ہے اور دوسری جانب لاہور آٹا چکی آنرز ایسوسی ایشن موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے سرگرم ہو چکی ہے۔ چکی آٹے کی قیمت میں دوسری مرتبہ 2 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ قیمت 80 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی ہے۔ شہر میں ہر طرف مہنگائی کا طوفان برپا۔ گندم کی قیمت میں اضافے کو جواز بناتے ہوئے لاہور آٹا چکی آنرز ایسوسی ایشن نے چکی آٹے کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا۔ چکی آٹے کی قیمت میں 2 روپے فی کلو کا مزید اضافہ کیا گیا، جس کے بعد چکی کا آٹا 80 روپے فی کلو تک جا پہنچا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں آٹے کا 10 کلو اور 20 کلو کا تھیلا دستیاب نہیں، جس کے باعث وہ مہنگے داموں چکی کا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ آٹا لینے آئے ہیں، 80 روپے کلو مل رہا ہے، ٹھیک ہے، باہر جائیں تو آٹا وہ تھیلے والا ملتا نہیں ہے، تو انسان کرے کیا، کس کو جا کے کہے؟ اب یہ پرانی گورنمنٹ کو کہیں گے جی یہ ان کی وجہ سے نہیں مل رہا، کہ اب نئی گورنمنٹ کو کہیں گے ان کی وجہ سے نہیں مل رہا۔ سر آٹا تو کہیں بھی کسی مارکیٹ میں نہیں ہے، کہیں بھی چلے جائیں آٹے کا برانا ہے، آٹا کہیں نہیں مل رہا، اور اگر چکی سے لیں تو جناب 80 روپے کلو آٹا ہے، تو غریب بندہ کہاں سے کھائے اور کیا کرے؟ لاہور آٹا چکی آنرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری عبد الرحمان کا کہنا ہے کہ گندم امپورٹ کرنے کے باوجود غلہ منڈیوں میں قیمت میں کمی نہیں ہوئی۔ غلہ منڈیوں میں گندم 2500 روپے فی من سے زائد میں فروخت ہو رہی ہے، جس کے باعث چکی آٹے کی قیمت میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سرکاری گندم دیکھیں، سرکاری گندم کا ریٹ 1400 روپے ہے اور ہمیں پرائیویٹ اوپن مارکیٹ میں سے 2500 روپے گندم مل رہی ہے، تو ہم کیسے کہنے، ہمارے وہ تو عوام کے کیا ہم چھینیں گے؟ ہم سے گورنمنٹ نے ہماری چیز چھین لی ہے، آپ گندم اتنی مہنگی ہے۔ لاہور آٹا چکی آنرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اگر گندم کی قیمت میں کمی نہ ہوئی تو آنے والے دنوں میں چکی آٹے کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافے کے باعث 2 وقت کی روٹی بھی عام آدمی کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کو سستے آٹے کی فراہمی یقینی بنائے۔ کیمرامین رانا مشہود کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی پر اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز حکومت پر برس پڑے، بولے آج آٹے قیمت کہاں چلی گئی؟ گندم غائب ہے۔ مریم نواز بولی نالائق اور نااہل اور مسلط شدہ وزیراعظم سے نجات ملے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عمران خان نئے پاکستان میں مہنگائی کا سونامی لے آیا ہے۔ عوام جو مہنگائی سے اور بے روزگاری سے تنگ آئی ہوئی ہے اور ان کی نالائکی سے، نااہلی سے تنگ آئی ہوئی ہے۔ غریب آدمی پوچھتا ہے کہ روز آٹا، دال، چاول، چینی ہماری دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہے، ہم اپنے بچوں کو کیا کھلائیں؟ مہنگائی کا سونامی، آٹا، گھی، چینی، گیس، بجلی، پانی لوگوں کے لیے جینا دوبر کر دیا۔ ہر طرف آٹے کے ساتھ ساتھ مہنگائی ہے اور ایک عام آدمی ہے وہ یقین کرے حکومت کی جان کو روڑ ہے۔ غریب مکاؤ والی پالیسی پہ یہ گورنمنٹ چل رہی ہے اور اس پہ یہ بالکل کامیاب جا رہے ہیں۔ مہنگائی چھٹ کے لوگوں نے چیخاں نکل رہی ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت نے شہر میں آٹے کے نرخوں میں اضافے کی ذمہ داری انتظامیہ پر ڈال دی ہے۔ قیادت کا کہنا ہے کہ حکومت آٹے پر مہینے کی 8 ارب روپے سبسڈی دے رہی ہے، اگر اس کے باوجود آٹے کی قیمت بڑھی تو یہ انتظامیہ کی نااہلی ہے۔ صوبائی وزیر آب پاشی محسن لغاری کا کہنا ہے کہ ملوں کو گندم سبسڈائزڈ ریٹ پر دی جا رہی ہے۔ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ حکومت کے مقرر کردہ نرخوں پر آٹا فروخت ہو۔ میں نے تجویز دی ہے کہ فلور مل سے ٹرک نکال کر سڑکوں پر حکومتی ریٹ پر آٹا فروخت کیا جائے۔ تحریک انصاف شمالی لاہور کے صدر غلام محی الدین دیوان کہتے ہیں کہ آٹا مہنگا ہونے کی ذمہ داری مل والے سے زیادہ انتظامیہ پر ہے۔ انتظامیہ کے 2-3 افسران کو سزا دیں، آٹے کی قیمت کنٹرول میں آ جائے گی۔ کمشنر لاہور ذوالفقار احمد گھمن کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر لاہور نے الغنی فلور ملز کا منسوخ کر دیا۔ کمشنر لاہور ذوالفقار گھمن کی ہدایت پر پرائس چیکنگ کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کے مطابق الغنی فلور ملز کے ڈیلر کو روزانہ آٹا سپلائی کے غلط اعداد و شمار پکڑے گئے۔ الغنی فلور ملز نے 10 کلو گرام کے 100 جبکہ 20 کلو کے 250 بیگز روزانہ ظاہر کیے ہوئے تھے۔ انتظامی ٹیموں کی چیکنگ پر چودھری سٹور ڈیلر نشتر کالونی نے آٹا عدم فراہمی کا بیان دیا۔ کمشنر آفس کے مطابق فلور ملز کے ساتھ ساز باز کرنے پر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر نے سٹور کا لائسنس بھی منسوخ کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ برٹش ایئر ویز نے برطانیہ سے لاہور کے لیے پروازوں کا آغاز کر دیا ہے۔ برٹش ایئر ویز کی پہلی پرواز نے ہیتھرو ایئرپورٹ سے لاہور کے لیے اڑان بھر لی ہے۔ پرواز
214 मुसाफिरों को लेकर लंदन से लाहौर के लिए रवाना होगी। परवाज BA 259 सुबह 5:40 पर लाहौर पहुंचेगी। लाहौर एयरपोर्ट को खैर मकदम के बैनर से सजा दिया गया है। डेप्टी एयरपोर्ट मैनेजर बरतानवी सिफारती अमला मुसाफिरों का इस्तकबाल भी करेगा। परवाज में 22 रुकनी ब्रिटिश एयरवेज का अमला भी शामिल होगा। पहली परवाज लाहौर पहुंचने पर लाहौर एयरपोर्ट पर केक काटने की तकरीब का भी इनेकाद किया जाएगा। ब्रिटिश एयरवेज को लाहौर के लिए हफ्तावार 4 परवाजों की इजाजत दी गई है। सितंबर लाहौरियों के लिए सितमगर साबित हुआ। रवा साल सितंबर के महीने में अदाद-ओ-शुमार ने तहलका बर्पा कर दिया है। पुलिस अफसरान की कमी और फोर्स में बददिली के बायस जराइम बढ़ रहे हैं। रोजाना औसतन 167 शहरी लूटमार का शिकार हुए। CCPO लाहौर के रवैये की वजह से पुलिस अफसरान ने अपने तबादलों की कोशिश शुरू कर दी है। शहर से SSP रैंक से लेकर DSP रैंक तक के अफसरान की बड़ी तादाद में तबादले कर दिए गए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सितंबर में 5021 मुकदमा सिर्फ लूट मार के दर्ज हुए। उनमें से ज्यादा शाहराहों पर डकैती और चोरी की वारदातें हुई। इसराइल का कहना है कि पुलिस अफसरान की कमी और अफसरान में बेजारी क्राइम बढ़ने की वजह बनी। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए ऑनलाइन मुकदमात की समाअत का मंसूबा। वुकला रहनुमाओं का मंसूबे की भरपूर हिमायत का अज़्म। कहते हैं पेपरलेस कोर्ट के कयाम से वक्त और पैसे की बचत के साथ साथ केसेस के बरवक्त फैसले हो सकेंगे। सीनियर जज जस्टिस अली बाकर नजफी के विजन पर लाहौर हाई कोर्ट के IT विंग ने पेपरलेस टेक्नोलॉजी के मुताबिक मुकदमात की समाअत के मंसूबे पर अमल दरामद के इकदामात का आगाज कर दिया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल आबिर साकी का कहना है इस इकदाम से साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी में मदद मिलेगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उससे बेनिफिट हासिल करना चाहिए और उसके मुताबिक पूरी दुनिया में ये निज़ाम प्रमोट किया जा रहा है और हमारे यहाँ भी इसका इनिशिएटिव लिया जा चुका है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक खुश आइंद और बड़ा मुस्बत इक़दाम है जिससे लोगों को अपने ऑफिस में बैठ के कोर्ट केस कंडक्ट करने में आसानी होगी। पाकिस्तान बार कौंसिल के रहनुमा एहसन बून और सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ताहर नुसला वड़ाइज ने भी पेपरलेस कोर्ट्स के मंसूबे को खुश आइंद करार दिया है। उनका कहना है कि मंसूबे के आगाज से कबल वकला को बाकायदा ट्रेनिंग दिलवाना वक्त की जरूरत है। थोड़ा सा वकला की ट्रेनिंग के लिए हमें काउंसिल लेवल पे करना पड़ेगा ताकि इनिशियल स्टेज पे ही इवन मैं समझता हूँ कि कॉलेज लेवल पे जो ऑनलाइन जैसे अब बच्चे पढ़ते हैं या अदरवाइज इसी तरह कोर्ट्स में भी अपने क्लासरूम में भी ये उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि हाउ दे हैव टू प्रोसीड। दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी, हम अभी तक वही उसी सिस्टम में जाना। मैं तो इसको कहता हूँ कि ये बड़ा रिमार्केबल जो है ना ये होगा ये मनसूबा। मैं इस तरह के काम होने से ये जो है ना एक काम की जो डिस्पोजल है वो बहुत ज्यादा स्पीड से हो जाएगी। सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार हारून दुगल और सदर लाहौर हाई कोर्ट बार GA तारक ने कहा है कि वो मंसूबे की भरपूर हमायत करते हैं। कोविड की सिचुएशन में भी जिसका अभी तक कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती कि ये कब तक ये मामला चलेंगे, पेपरलेस कोर्ट्स का इजरा किया जाना लोअर कोर्ट्स के हवाले से भी और हाई कोर्ट के हवाले से भी इंतहाई ज़रूरी है और हम बतौर बार एसोसिएशन इस इदारे में चीफ जस्टिस साहब के इस इकदाम को सराहते हुए उनके साथ हर किस्म के ताउन की यकीनदानी करवाते हैं। इस निज़ाम के लिए बड़ा वक्त दरकार है क्योंकि हाई कोर्ट को आप पेपरलेस तब तक नहीं कर सकते जब तक आप ट्रायल कोर्ट को पेपरलेस ना करें, क्योंकि यहाँ पे तो तकरीबन सारे के सारे वो फैसले आने हैं जो नीचे से अपीलें आनी हैं क्रिमिनल केसेस के अंदर या सिविल केसेस के अंदर। कोरोना से जहां हमारे माशरती रहन सहन में बेपनाह तब्दीलियां अमल में आई हैं, ऐसे में पेपरलेस टेक्नोलॉजी को फरोग देना भी वक्त का तकाजा है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान और जस्टिस अली बाकर नजफी ने अदालत आलिया लाहौर में जदीद टेक्नोलॉजी की हामल पहली पेपरलेस कोर्ट्स में मुकदमात की समाअत का आगाज कर चुके हैं। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। विफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा, लेस्को सारिफिन को रवा माह 27 अरब रुपए की इजाफे अदायगी करना होगी। गुज़िश्ता साल अक्टूबर से रवा साल मार्च तक के लिए 1 अरब 62 पैसे फी यूनिट कीमत बढ़ा दी गई है।
वफाकी हुकूमत की क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट रवा माह सारिफीन पर बिजली बनकर गिरेगी। टैरिफ एडजस्टमेंट की वजह से लेस्को सारिफीन को अरबों रुपए की इजाफी अदायगियां करना होंगी। हुकूमत ने रवा माह 2 क्वार्टर्स टैरिफ एडजस्टमेंट को बैक वक्त वसूल करने का फैसला किया है। दस्तावेजात के मुताबिक गुज़श्ता साल अक्टूबर से दिसंबर तक सारिफीन को 11 अरब रुपए इजाफी अदा करना होंगे, जबकि रवा साल जनवरी से मार्च तक 16 अरब रुपए इजाफी अदा करना होंगे। नेपरा के मुताबिक क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट सारिफीन के करंट बिल के साथ इजाफी अदा करना होंगी। दोनों एडजस्टमेंट्स एक साथ वसूल करने से सारिफीन पर अरबों रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकारी महकमे ठेकेदारों के 100 अरब के नादहिंदा निकले। सूबाई महकमों के पास ठेकेदारों की अदायगियों के लिए फंड्स खत्म हो गए। महकमे PND ने खतरे की घंटी बजा दी है। विफाक से मदद न ली तो पंजाब हुकूमत की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। बुजदार सरकार ने वाजिबुल अदा रकम की अदायगियों में सेंचुरी मुकम्मल कर ली। सादगी और बचत का नारा लगाने वाली हुकूमत ने साबिका हुकूमत को भी मात दे दी। जराये के मुताबिक वाजिबुल अदा रकम 100 अरब तक पहुंच चुकी है, जिस पर PND बोर्ड ने ईवान वज़ीर आला को आगाह किया है कि वफाक से मदद न ली गई तो पंजाब हुकूमत मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। जराये के मुताबिक मौजूदा दौरे हुकूमत में महंगाई ने मंसूबों की लागत में भी इजाफा कर दिया है। PND बोर्ड के मुताबिक छोटे बड़े मंसूबों पर ठेकेदारों और महकमों के बकायाजात बढ़ते जा रहे हैं, जबकि पंजाब हुकूमत के पास बकायाजात के लिए फंड्स कम हैं। GOR1 रिटायर अफसरान की आमाजगाह बन गया। अफसरान तो रिटायर हो गए मगर सरकारी रिहाइश गाहों का कब्जा नहीं छोड़ा। आजम सुलेमान रिटायरमेंट के बाद GOR में रिहाइश पजीर हैं। साबिक चीफ सेक्रेटरी मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने 2 माह के बाद मजीद 6 माह घर में रखने की इजाजत दे दी है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आला डॉक्टर राहील सिद्दीकी रिटायरमेंट के बाद GOR1 में रिहाइश पजीर हैं। डॉक्टर राहील सिद्दीकी को नवंबर 2021 तक GOR1 के घर में रहने की इजाजत दी गई है। डॉक्टर राहील सिद्दीकी वाहिद अफसर हैं जिन्हें ये स्पेशल इजाजत दी गई। साबिक सेक्रेटरी सर्विसेज मोहम्मद इलियास और साबिक वफाकी सेक्रेटरी मियां मुश्ताक अहमद ने रिटायरमेंट के बाद GOR1 की रिहाइश खाली नहीं की। साबिक सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार शाहीन और साबिक सेक्रेटरी तारिक महमूद भी रिटायरमेंट के बाद GOR1 में रिहाइश पजीर हैं। इनमें से कुछ रिटायर्ड अफसरान ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर दबाव डालकर तौसी हासिल कर रखी है। रिटायरमेंट के 2 माह बाद तक रिटायर्ड अफसर सरकारी रिहाइश का इस्तेमाल कर सकता है। PCS अफसर डॉक्टर सालेहा ताहिर ने फौरी रिटायरमेंट के बाद घर खाली कर दिया है। DMG अफसरान रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी घर खाली नहीं करते। महकमा खजाना का लाहौर समेत पंजाब में हेल्थ सेक्टर के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों को 2 अरब के इजाफी फंड जारी करने का फैसला सामने आया है। मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। महकमा खजाना का हेल्थ सेक्टर के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों को इजाफी फंडिंग का फैसला। वजीर आला के अहकामात पर गंगा राम चाइल्ड एंड मदर अस्पताल समेत महकमा सेहत के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 2 अरब के फंड्स देने का फैसला किया गया है। मुख्तलिफ मंसूबाजात के लिए मुख्तलिफ फंड्स में से 2 अरब हेल्थ सेक्टर के मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए जारी किए जाएंगे। महकमा सेहत की जानिब से फंड्स की कमी के बाद ज़ेरे इल्तवा मंसूबाजात को मुकम्मल करने के लिए इजाफी फंड्स जारी करने की सिफारिश की गई थी। और अब अहम खबर सन है। मोटरवे के मरकजी मुल्जिम आबिद मलिक की गिरफ्तारी के हवाले से IG पंजाब ने मुल्जिम की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। वज़ीर आला और IG का टीम के लिए खुसूसी इनाम का ऐलान भी सामने आया है। IG ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी थी। DIG इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान टीम के सरबराह थे। CIA लाहौर ने SP आसिम इफ्तिखार की सरबराही में काम किया। मुल्जिम आबिद मलिक को जदीद तरीका तफ्तीश के तहत गिरफ्तार किया गया। IG पंजाब की जानिब से ये बताया जा रहा है। अवाम और मीडिया के मशकूर हैं। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए वक्त दिया। इनाम गनी की जानिब से ये भी कहा जा रहा है। मजीद कहना है कि टीम रोजाना वजीर आला उस्मान बुज़दार को भी रिपोर्ट देती रही है। वजीर आला ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी में जाती दिलचस्पी ली। इनाम गनी की जानिब से ये कहा जा रहा है। सानेह मोटरवे के मरकजी मुल्जिम आबिद मलिक की गिरफ्तारी। IG पंजाब ने मुल्जिम की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। वजीर आला और IG का टीम के लिए खुसूसी इनाम का भी ऐलान। IG ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी तश्कील दी थी। DIG इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान टीम के सरबराह थे। CIA लाहौर ने SP आसिम इफ्तिखार की सरबराही में काम किया। मुल्जिम आबिद मलिक को जदीद तरीका तफ्तीश के तहत गिरफ्तार किया गया है। IG पंजाब की जानिब से कहा गया कि अवाम और मीडिया के मशकूर हैं। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए वक्त दिया। टीम रोजाना वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को भी रिपोर्ट देती रही है, जबकि वज़ीर आला ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी में जाती दिलचस्पी ली है। इनाम गनी की जानिब से इन ख्यालात का इजहार भी किया गया है। IG पंजाब ने मुल्जिम की गिरफ्तारी की बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है। वज़ीर आला और IG का टीम के लिए
खुसूसी इनाम का ऐलान भी सामने आया है, जबकि आईजी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी थी और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान टीम के सरबराह थे। CIA लाहौर ने SV आसिम इफ्तिखार की सरबराही में ये कार्रवाई की है। मुलजिम आबिद मलही को जदीद तरीका तफ्तीश के तहत गिरफ्तार किया गया। IG पंजाब की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि अवाम और मीडिया के मशकूर हैं कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए हमें वक्त दिया। अभी आगे बढ़ें, आपको बताएं महकमा आबपाशी माली मुश्किलात से दो चार है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आबियाना और तावान रिकवरी का पुराना और मैनुअल सिस्टम खत्म कर दिया गया है। PITB के ताउन से डिजिटलाइज सिस्टम करने का फैसला किया गया है। मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी रखने वाला महकमा आबपाशी रिकवरी मसाइल के बायस माली मुश्किलात से दो चार है। महकमा आबपाशी ने आबियाना और तावान की रिकवरी के लिए पुराने और मौजूदा मैनुअल सिस्टम से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया है। रिकवरी में शफाफियत के पेश नजर डिजिटल सिस्टम लाया जाएगा। महकमा आबपाशी ने PITB के ताउन से रिकॉर्ड और बिलिंग के लिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की तैयारी का अमल शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक नया सिस्टम दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सिस्टम डिजिटल करने से पंजाब में 2 करोड़ एकड़ अराजी और 84 लाख लोगों का रिकॉर्ड मुरतब किया जा सकेगा। महकमा आबपाशी आबियाना, तावान और दीगर बिल बजरिया SMS, ईमेल और मोबाइल एप्लीकेशन भेजेगा। डिजिटल तरीके से भेजे गए बिल बैंकों में जमा कराए जा सकेंगे। महकमे को डिजिटलाइज करने से गैर जरूरी 2000 से ज्यादा पोस्टों को भी खत्म करके सालाना 24 करोड़ 61 लाख की बचत की जा सकेगी, जबकि रिकवरी में शफाफियत से रेवेन्यू मजीद बढ़ाया जा सकेगा। LDA में मनपसंद प्लॉट्स की अलॉटमेंट का स्कैंडल है। सिटी 42 ने मामला उठाया तो LDA को होश आ गया। जाली और बोगस कागजात पर 7 करोड़ 50 लाख मालियत के 6 प्लॉट कैंसिल कर दिए। DLD1 मौसम रशीद ने प्लॉटों की कैंसिलेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्लॉट नंबर 328Q, 814G4 और 350G4 को कैंसिल कर दिया गया। 604P, 636P, 223R1 जौहर टाउन, प्लॉट नंबर 257, 259L, 35 और 402D1 को भी कैंसिल किया गया। LDA में SOPs की खिलाफ वर्जी करके प्लॉटों की एलोकेशन की गई थी। मामला मंजर आम पर आने के बाद स्क्रूटनी करके प्लॉट्स को मनसूख कर दिया गया। सिटी 42 ने चंद रोज कबल प्लॉटों को मनपसंद अफराद को अलॉट करने का स्कैंडल उठाया था। हुकूमत के बेहतरीन इलाज की फराहमी के दावे, लेकिन हकीकत इसके बरक्स। पंजाब डेंटल हॉस्पिटल के 30 वर्ष पुराने निस्फ से ज्यादा डेंटल यूनिट्स खस्ता हाल हैं। मियारी इलाज की फराहमी के काबिल ही नहीं है। अस्पताल के 100 नए डेंटल यूनिट्स खरीदने के लिए गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान बार बार इस्तदा को ठुकरा दिया गया। सूबे भर की दांतों के अमराज की सबसे बड़ी सरकारी इलाजगाह पंजाब डेंटल अस्पताल पुराने बोसीदा खस्ता हाल डेंटल यूनिट्स और आलात के बाइस मरीजों को मियारी इलाज फराहम करने से कासिर है। पंजाब डेंटल अस्पताल में इस वक्त 110 डेंटल यूनिट्स मौजूद हैं, जिनमें से 70 डेंटल यूनिट्स 30 बरस पुराने और खस्ता हाल होने की वजह से इलाज मुआवजे की मियारी सहूलत फराहम करने के काबिल भी नहीं है। जराये के मुताबिक पंजाब डेंटल अस्पताल की जानिब से 100 नए डेंटल यूनिट्स की खरीदारी के लिए हुकूमत से बार बार इस्तदा की गई, जिसे हर बार ठुकरा दिया गया। डेंटल यूनिट्स की खरीदारी के लिए डेंटल अस्पताल को सिर्फ 10 करोड़ रुपए के फंड दरकार हैं, जो ताहाल नहीं मिल सके। पंजाब डेंटल हॉस्पिटल में योमिया 700 से ज्यादा मरीज आते हैं, जिनको दांतों के अमराज का इलाज फराहम किया जाता है। डेंटल यूनिट्स और इनसे मुंसलिक तिब्बी आलात पुराने और बसीदा होने की वजह से मरीजों को मियारी इलाज की फराहमी मुश्किलात से दो चार है। यंग डॉक्टर्स के तहफ्फुज़ात नजरअंदाज। हुकूमत का MTI एक्ट नाफिज करने का फैसला। MTI एक्ट नाफिज करने के लिए समरी लॉ डिपार्टमेंट को इरसाल कर दी गई। YDA और PMA के तहफ्फुज़ात के बावजूद कर लिया है। महकमा सेहत ने MTI एक्ट के नफाज के लिए समरी लॉ डिपार्टमेंट को अरसाल कर दी है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि लॉ डिपार्टमेंट से पास होने के बाद समरी काबीना को भिजवाई जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद एक्ट को नाफिज किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ने मजीद बताया कि इब्तदाई तौर पर MTI एक्ट का नफाज लाहौर और सियालकोट में किया जाएगा। बात करते हैं 7 अरब 32 करोड़ रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के केस के हवाले से। तो शहबाज शरीफ का नैब को दिया गया 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। एहतसाब अदालत आज पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत रवानगी के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। राय के मुताबिक पुलिस हुकाम को नैब दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी तैनाती के हवाले से आगाह कर दिया गया। नैब कवानीन के मुताबिक शहबाज शरीफ को दी जाने वाली सहूलियात बारे अदालत को आगाह किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता पेशी पर हवालात में अदम सहूलियात की शिकायत एहतसाब अदालत को की थी, जिस पर सहूलियात का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ फैमिली और जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ FIA इकदाम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात। लाहौर हाईकोर्ट की दरख्वास्त गुजार शुगर मिल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के हुक्म इम्तनाई में तौसी कर दी गई। जस्टिस शाहिद करीम और
किल्लत पर 16 मार्च को इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। फारूकी पिल्प मिल्स और अल अरेबिया शुगर मिल पर कॉर्पोरेट फ्रॉड का बेबुनियाद इल्जाम आयद किया गया है। वफाकी काबीना ने फारूकी पिल्प मिल और अल अरेबिया शुगर मिल के खिलाफ इंक्वायरी करने का गैर कानूनी हुक्म दिया है। शुगर मिल के खिलाफ तहकीकात 90 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। JIT का अल अरेबिया शुगर मिल से रिकॉर्ड तलबी के नोटिस गैर कानूनी है। दरख्वास्तदारों की जानिब से इब्तिदा की गई कि अल अरेबिया शुगर मिल और फारूकी पल्प मिल के खिलाफ वफाकी हुकूमत के इंक्वायरी के अहकामात को गैर कानूनी करार देकर कल अदम करार दिया जाए। मजीद इब्तिदा की गई कि तलबी के नोटिस मुअत्तल किए जाएं और हरासा करने से रोका जाए। मस्जिद वजीर खान में फिल्म की एक्सबंदी के मामले पर इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। मैनेजर इश्तियाक अहमद समेत 3 मुल्जिमान को नौकरी से फारिग करने का फैसला किया गया है। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर के जेरे इंतजाम मस्जिद वजीर खान में फिल्म की अक्सबंदी कराने का सारा मलबा महकमा औकाफ के अफसरान और मुलाजमीन पर डाल दिया गया है। जराये के मुताबिक महकमाना कार्रवाई में मैनेजर समेत 3 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने का फैसला किया गया है। मुअत्तल होने वालों में मैनेजर मस्जिद वजीर खान इश्तियाक अहमद, सीनियर क्लर्क मोहम्मद रियाज और जूनियर क्लर्क इमरान शामिल हैं। इंक्वायरी ऑफिसर एडिशनल सेक्रेटरी अतर मसूद ने सिफारिशात मुरतब की हैं, जिसमें तीनों मुलाजमीन की जबरी रिटायरमेंट करने की सिफारिश की गई है। वाज़ेह रहे कि मस्जिद वजीर खान में अक्सबंदी कराने पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया था, जिसके बाद इंक्वायरी के दौरान मस्जिद का तकद्दुस पामाल होने की वजह से मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का फैसला किया गया है। और अब बात टिकटॉक की बंदिश के मामले पर। टिकटॉक के शौकीन अफराद ने VPN के जरिए टिकटॉक इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। शहरी ने VPN की बंदिश के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। इरफान अली ने मुतफर्रिक दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि टिकटॉक पर पाबंदी के बाद भी इसका इस्तेमाल जारी है। वकील के मुताबिक बहुत से सार्फिन VPN के जरिए टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं। टिकटॉक पर पाबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जरूरी है कि VPN का इस्तेमाल भी बंद कर दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि VPN के जरिए भी टिकटॉक बंद करने का हुक्म दिया जाए। वजीर आला पंजाब ने कहा है कि तालीम समेत सोशल सेक्टर के हर शोबे में पाक फिजाइया से भरपूर ताउन किया जाएगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांड पाकिस्तान एयर फोर्स लाहौर एयर वाइस मार्शल जफर असलम ने मुलाकात की। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मुल्क के दिफा के लिए पाक फिजाइया की खिदमात को खिराजे तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एयर फोर्स पर पूरी कौम को नाज है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में सोलर पैनल वॉल का इफ्तिताह कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि महंगाई हुकूमत का बड़ा चैलेंज है। लोगों में महंगाई की वजह से गुस्सा है। 5 साल के लिए इलेक्ट हुए हैं, डिलीवर भी करेंगे। यूईटी में मुनक्किदा सोलर पैनल वॉल की इफ्तिताही तकरीब में वजीर तवानाई मलिक मोहम्मद अख्तर, वाइस चांसलर डॉक्टर सैयद मंसूर सरवर, सेक्रेटरी एनर्जी आमिर जान ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं महंगाई हुकूमत का बड़ा चैलेंज है। लोगों में महंगाई की वजह से गुस्सा है। उन्होंने कहा कि 2 खरब से जायद के गर्दिशी कर्जे हैं, मुआशी तौर पर आजाद होंगे तो आजाद खारजा पॉलिसी बनेगी। पूरी दुनिया में कॉटन पे पर हेक्टर जो है यील्ड जो है 1800 किलोग्राम से 2400 किलोग्राम तक है। पाकिस्तान में ये 600 किलोग्राम आ गई। इंडिया की कॉटन 12 मिलियन से 40 मिलियन बेल हो गई है, हमारी 15 से 8 मिलियन पे आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि वी नीड टू हैव राइट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी फॉर अवर एग्रीकल्चरिस्ट, और इसी तरीके से हम इस मुल्क में, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 मिलियन बेल जो है वो दैट मीन $1 बिलियन इन योर इकॉनमी। तो आप अंदाज़ा कर लें कि अगर हम 8 से 20 मिलियन बेल पे ले जाते हैं तो हमें ना किसी से कर्जे लेने की ज़रूरत है, ना हमें अपना जो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी इससे बढ़ेगी। सूबाई वजीर तवानाई मलिक मोहम्मद अख्तर ने कहा कि पंजाब हुकूमत का सोलर एनर्जी पैनल की इंस्टॉलेशन पर 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। हुकूमत ने पंजाब के 8000 प्राइमरी सरकारी स्कूलों में सोलर पैनल लगा दिए हैं। जून तक हम 60 यूनिवर्सिटीज को सोलर पर शिफ्ट करेंगे। हर महीने हम 10 यूनिवर्सिटीज के साथ MOU साइन कर रहे हैं, और इनके न सिर्फ MOU साइन कर रहे हैं बल्कि उन पे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। वाइस चांसलर यूईटी डॉक्टर सैयद मंसूर सरवर कहते हैं कि सोलर पैनल के मंसूबे से यूनिवर्सिटी को सालाना 6 करोड़ रुपए बचत होगी, जिससे यूनिवर्सिटी के 1500 तलबा को ट्यूशन फीस पर 50% रियायत देंगे। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा अकमल सोमरो, सिटी 42। मजंग सफा वाला चौक पर अलबाशा ग्रुप की जानिब से शहबाज तिक्का रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कर दिया गया।
इंटरनेशनल पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की कामयाबी के बाद अलबाशा ग्रुप की जानिब से मजंग सफावाला चौक पर शहबाज टिक्का शॉप का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में CEO अलबाशा शहबाज चौधरी, जहीर अब्बास, मलिक जमान नईम, यासिर भट्ट, एडवोकेट हाई कोर्ट शाहिद अब्बास, सदर केबल ऑपरेटर लाहौर चौधरी सज्जाद, फाइनेंस सेक्रेटरी केबल ऑपरेटर लाहौर आबिदुर रहमान, चेयरमैन मनामा केबल मलिक मून समेत दीगर ने शिरकत की और इफ्तिताह किया। इस मौका पर CEO शहबाज टिक्का रेस्टोरेंट चौधरी जहीर अब्बास का कहना था कि उनके खानों को आलमी सतह पर पजीराई मिली है, अब पाकिस्तान में भी मुतारफ करवाए जा रहे हैं। हमारे ब्रांचें थाईलैंड में हैं, पुकट शहर में बीच पे हमारी ब्रांचें हैं, वहाँ पे 4 रेस्टोरेंट हैं हमारे, और दूसरे नंबर पे अभी हमने यहाँ पे शुरू किया है क्योंकि अभी हमारे गवर्नमेंट इमरान खान साहब ने उन्होंने बहुत अच्छा हमें ओवरसीज़ के लिए वो सोचते हैं, उसके लिए हम इधर आके हमने इफ्तिताह किया है। तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमान खानों से महजूद हुए और तारीफ किए बिना ना रह सके। माहौल बड़ा अच्छा है, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे खाना खाया है, अच्छा टेस्ट है इसका। ये हमने पहले खाया था यहाँ पे जब अपने आउटिंग के लिए गए थे दूसरे मुल्क में, यहाँ पे तो वहाँ पे बड़ा अच्छा टेस्ट नहीं मिला था। यही वाला टेस्ट दोबारा यहाँ पे अपने मुल्क में मिल रहा है तो बड़ा मज़ेदार वाली बात है। हम यहाँ पर आए हैं और जो दोस्त हैं उन्होंने खाया है और बड़ा इंजॉय किया, और मेरा ख्याल है लाहौर में ये एक मिसाली दुकान है। शहबाज टिक्का रेस्टोरेंट में लाहौरियों की पसंद बारबेक्यू, कड़ाही, मटन कड़ाही और चाइनीज खानों को मुतारफ करवाया गया है, जो लज्जत और ग़िज़ाइयत में अपनी मिसाल आप हैं। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। और लाहौर की खूबसूरती को चांद लगाने के लिए कलमा चौक पर दिलकश आर्ट पेंटिंग जारी है। पेंटिंग के जरिए न सिर्फ कलमा चौक की खूबसूरती में इजाफा किया जा रहा है, बल्कि मुल्की सकाफत को भी उजागर करने की कोशिश की गई है। उस्मान इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी उस्मान। जी बिल्कुल, मैं कलमा चौक पे मौजूद हूँ और लाहौर की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए जो कलमा चौक अंडर आर्ट का एक नमूना है पेश किया जा रहा है। और ये खूबसूरत रंग जो है ना सिर्फ पेंटिंग है बल्कि हमारी सकाफत और आर्ट की भी अक्कासी कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे अकब में भी देख सके तो बड़े खूबसूरत यहाँ पे जो है डेकोरेट किया जा रहा है, इनको पेंट किया जा रहा है। और लकीली जब मैं यहाँ पर इस सबको ऑब्जर्व करने के लिए आया, देखने के लिए आया, तो मुझे यहाँ पर उमर हुसैन साहब मिले, जिनकी काविशों का ये नतीजा है कि अपनी टीम के साथ रात के भी वो बड़े डेडिकेशन से काम करें। जी उमर भाई बताइएगा ये सारे प्रोजेक्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जब भी लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर है, तो वैसे बड़े डल और वो वाली चीज़ इसके अंदर पहले तो जितने भी आर्टिस्ट जिन्होंने इसके अंदर साथ दिया और काम किया है 90% ऑफ देम वर गर्ल्स, जिन्होंने मतलब जो लाहौर को प्यारा करने के लिए लाहौर के सबसे बिजीएस्ट चौक के अंदर खड़े होके 8 घंटे किसी स्कैफ फोल्डिंग के ऊपर खड़े होके कोई पेंटिंग बनाना आसान काम नहीं है। तो फिर हम लोगों ने मतलब स्वीट टूथ के प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। मेंबर कौमी असम्बली मलिक करामत खोखर, मेंबर सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा ने हसन टाउन और मेराज पार्क में वाटर सप्लाई लाइनों का इफ्तिताह कर दिया। हल्का पहुंचने पर मेंबरान का शानदार इस्तकबाल किया गया। हसन टाउन और मेराज पार्क के इलाका मकीनों का देरीना मसला हल हो गया। मलिक करामत अली खोखर और मलिक नदीम अब्बास बारा ने वाटर सप्लाई पाइपलाइनों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए मलिक करामत अली खोखर ने कहा कि अहले इलाका की तरफ से अक्सर पानी में सीवरेज के शामिल होने की शिकायत मिलती रही थी, जिसकी वजह से हमने 2 करोड़ की रकम का फंड जारी करवा के अवाम के मसाइल को हल कर दिया है। मलिक नदीम अब्बास बारा का कहना था कि हमने हमेशा हल्के की अवाम के मसाइल को फौरी हल करने की कोशिश की है। साबिका हुक्मरानों ने हमेशा हमारे हल्के को तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से मसाइल बहुत ज्यादा थे। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना।